Very good morning to all of you, bete. So today we are going to start with the fourth method of collecting primary data, which is mailed questionnaire method. So mailed questionnaire method means, as it's clear from the name, bete, that when a questionnaire is prepared and sent to the informant through mail, that is a mail questionnaire method. Now, the question is, what do you mean by questionnaire? Better, questionnaire is nothing but it is a simple form containing set of questions related to inquiry. जो भी इन्वेस्टिगेटर का पर्पस ऑफ इंक्वायरी है उससे रिलेटेड उसको जो भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, ठीक है, जो भी डेटा उसको चाहिए उससे रिलेटेड ही विल मेक क्वेश्चंस, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस का एक फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं क्वेश्चनायर। एक्सक्यूज मी। So let's suppose CBSE wants to know, CBSE has declared 10th result on the basis of certain formula, and now it wants to take the feedback of the students whether they are satisfied with their result or not, right? So CBSE will frame one questionnaire in which there will be different types of questions, including your name, address, your session, your name of school, your age, right? And many other questions related to the purpose of inquiry. So that questionnaire, what it will do, it will, put one covering letter along with it, informing you that we have declared your result on the basis of this formula, and we are conducting this survey in order to take your feedback regarding your result. Okay, so because it is in your favor, you are requested to fill the form and send it back to us, right? And it will also assure you that the information given by you will be kept confidential by CBSE, ठीक है। एंड क्वाइट पॉसिबली वो आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप भी भेजेगी, ठीक है। स्टैंप जिसके ऊपर लगी होगी, एड्रेस जिसके ऊपर लगा होगा, तो आपको क्या करना होगा, you will just have to fill the form, give it the answers, fold it back, put it in this envelope and mail it, send it in some post box, right? So this is a mailed questionnaire method. I am explaining again. In this method, the investigator prepares the questionnaire related to the affair of inquiry, right? Along with this questionnaire, he attaches one covering letter in which purpose of the inquiry is mentioned, and a request is made to the informant to send back the questionnaire after filling it, and also the assurance is given that the information given by the respondent will be kept confidential, okay? So this method is quite suitable when area of inquiry is large. When area of inquiry is large, in that case it's not possible कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यानी वन टू वन बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकें, नाइदर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज पॉसिबल, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज हमने जो थर्ड मेथड किया था बेटे, दैट इज सूटेबल ओनली व्हेन यू रिक्वायर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन। ये तो वन टाइम सर्वे है, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स पॉसिबल नहीं है। मेथड वी कैन अडॉप्ट मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड, ठीक है। मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड बहुत ही सिंपल है बेटे। एक आपको क्वेश्चनायर बनाना है। क्वेश्चनायर क्या होता है? इट इज अ फॉर्म कंटेनिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी इंक्वायरी। उसके साथ आपको एक कवरिंग लेटर भेजनी पड़ेगी इन्फॉर्मेंट को, जिसमें आप उसका पर्पस मेंशन करोगे, ठीक है, और उसको रिक्वेस्ट करोगे कि आप इसको वापस भेज दीजिए, और साथ ही साथ ये भी बताओगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है इट विल बी केप्ट सीक्रेट, राइट?
साथ में अगर आप सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप भेज दोगे तो इट विल assure the response from the informant. Now this method is suitable, one thing, when the field of inquiry is large, another thing when the respondents are educated. Now the students are entering at 8:42. I am not allowing them. Okay. So when the respondents are educated, because बेटे आप क्वेश्चनायर भेज रहे हो, रिस्पोंडेंट को फिल करके भेजना पड़ेगा. अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो ना इसको पढ़ पाएगा और ना ही इसको फिल कर पाएगा, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा. ठीक है. सो सूटेबिलिटी यही है, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज. सेकेंडली, व्हेन द informants are educated. Now let's see what are the various merits and demerits of mailed questionnaire method. First merit is wide coverage. So wide coverage means this is suitable when the field of inquiry is large. So it can cover wide area. So this is one of its merit कि wide area के लिए भी हम इस method का इस्तेमाल कर सकते हैं. Secondly, it is economical. What you have done, you have made one questionnaire, get it photocopied and send it by mail to the respondents. So अगर आप कोई और मेथड यूज करते, आप एन्यूमरेटर अपॉइंट करते, ठीक है, आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाता, इन्वेस्टिगेटर, इट वुड हैव एंटेल्ड लॉट ऑफ कॉस्ट. अब उसको ना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, उसने सिर्फ बाय पोस्ट सबको भेज दिए. ठीक है. नाउ आजकल बेटे ये मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड का वेरिएंट थोड़ा सा चेंज हो गया है. नाउ यू कैन सेंड इट थ्रू ईमेल. So that is more economical. अब वहाँ पे आपको स्टैंप भी नहीं लगनी पड़ती. ठीक है. लेकिन बस उसके लिए आपको ईमेल आईडी, आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिल करते हो सीबीएसई का, 9th के लिए में आपने फिल किया होगा, 10th में फिल किया होगा, तो देयर इज वन कॉलम ऑफ ईमेल आईडी. ठीक है. तो हो सकता है सीबीएसई जब सर्वे कंडक्ट करना चाहती है तो आपको ईमेल के थ्रू ये क्वेश्चनायर भेज दे. ठीक है. नाउ द डेटा obtained through this method is original in nature. How come it's original? Beta, it is being sent to the informant, it is being filled in by the informant. ठीक है. तो source of जो information, source of information से ही आप data ले रहे हो, तो obviously it is going to be quite original in nature. All the data obtained through primary sources, it is original, but what varies is the degree. ठीक है. जब आप डायरेक्ट पर्सनल लेते हो तो वो ज्यादा ओरिजिनल होता है, इनडायरेक्ट ओरल में कम ओरिजिनल होता है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज में ओरिजिनलिटी और थोड़ी सी कम हो जाती है. लेकिन मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड में डेटा ऑब्टेन्ड इज क्वाइट ओरिजिनल. बट देन नो लेस आर इट्स डीमेरिट्स, राइट? जस्ट वेट बेटा. Okay, let's discuss the demerits of this method. Lack of flexibility is there. बेटे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कई बार आपको जब आप इन्वेस्टिगेटर और इंफॉर्मेंट के बीच में जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश हो रहा है, तो कई बार आप इन्वेस्टिगेटर ने जो भी इससे इंफॉर्मेशन लेनी है, कई बार इंफॉर्मेंट उसको समझ नहीं पाता है, या इन्वेस्टिगेटर को क्वेश्चंस पूछते पूछते लगता है कि नहीं भाई ये मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. ठीक है. तो उसके अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को चेंज कर लेता है, या इसको कोई अगर उसको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है तो वो क्रॉस चेक करने के लिए कोई नया क्वेश्चन उससे पूछ लेता है ताकि पता चल जाए कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा. ठीक है. अब ये तभी पॉसिबल है अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपने स्टेब्लिश किया हुआ है. लेकिन मेल क्वेश्चनायर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है नहीं है, आपके वही फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो जा रहे हैं इंफॉर्मेंट के पास. ठीक है. तो इंफॉर्मेंट उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेगा, और अगर उसका मन करेगा तो वो नहीं भी करेगा. सो व्हिच मींस देयर इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम पे क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. सो जैसे आपने क्वेश्चन आयर बनाया है वैसे ही जाएगा. इन बिटवीन अगर आपको रियलाइज होता है तो कि आपके क्वेश्चंस में चेंज होना चाहिए, तो आप उसको नहीं कर सकते. ठीक है. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लोग पता क्या करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो पायलट सर्वे कंडक्ट करता है. हैज एनीवन हर्ड ऑफ दिस टर्म पायलट सर्वे? आपने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा. पायलट सर्वे का मतलब होता है बेटे, जो एक्चुअल सर्वे है ना, उससे पहले
स्मॉल लेवल पे एक सर्वे कंडक्ट कर ली जाती है। जैसे मैंने आपको बोला सीबीएसई ने आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो सीबीएसई ने क्या किया, 5-7 स्कूलों को, सिर्फ इंडिया के 5-7 स्कूलों में, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी भी पायलट सर्वे चल रही है, 5-7 स्कूलों में वो एग्जीक्यूट करके देखेंगे कैसे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो अगर उनको लगता है उसमें कोई चेंज की जरूरत है, कोई क्वेश्चन ऐसा था जो रिस्पोंडेंट्स नहीं आंसर कर पाए हैं, तो इन दैट केस दे विल चेंज इट। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को, इस डीमेरिट को ओवरकम करने के लिए पायलट सर्वे कंडक्ट कर ली जाती है। नेक्स्ट डीमेरिट है बेटे प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम बहुत आती है इसमें। आपके पास एक क्वेश्चन आया आ गया, आप यू जस्ट इमेजिन योरसेल्फ टू बी रिस्पोंडेंट एंड सीबीएसई हैज सेंड यू क्वेश्चन आयर। सो आपको लगेगा अरे हम तो +1 में हो गए, बस एडमिशन जहां लेनी थी ले ली है, हमारे पास अब टाइम नहीं है, हम क्यों क्वेश्चंस फिल करके दें। ठीक है, इवन इफ सीबीएसई ने कहा है कि इंफॉर्मेशन जो है आपके वेलफेयर के लिए हम ले रहे हैं, आपके यू नो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, लेकिन फिर भी ड्यू टू योर लेजीनेस, ड्यू टू योर यू नो बिजी स्केड्यूल, you might not respond to the questionnaire. So this problem of non-response is very much there. The CBSE ने 10,000 questionnaire भेजे respondents को और सिर्फ 8,000 का वापस आया। ठीक है, ये 2,000 का रिस्पॉन्स नहीं आया, उस केस में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, डीमेरिट है इसकी कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। देन बेटे इट माइट बी बायस्ड। बायस किसका एंटर करेगा, इन्फॉर्मेंट का एंटर कर सकता है। ठीक है, क्यों, कैसे कर सकता है, क्योंकि जब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा तब आप झूठ नहीं बोल पाते हो, लेकिन जब आप यू नो क्वेश्चन आयर में फिल कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, तब आप झूठ बोल सकते हो, राइट। सो इन दैट केस the bias of the informant may enter, then information would be less accurate, obviously बेटे। लेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आप जो मर्जी झूठ बोलो, आपको कौन सा, आपकी पॉकेट मनी है 500 रुपए, आपने वहां पे लिख दी 5,000 रुपए, आपने कहा 500 बहुत कम लग रहा है, चलो 5,000 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ सीबीएसई ने आपसे पूछा कि भी आपके प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे, आपने कहा कौन सा कोई प्रूफ वो मांग रहे हैं, आपके आए थे 60%, आपने 80% लिख दिए। डज इट हैपन और नॉट? Just imagine yourself to be at the place of the respondent. Do you think such things will happen when you are supposed to fill in questionnaire? How many of you think these things will happen? That the information will be less accurate, your bias will enter, or you may not respond. Do you think this will happen, bete? Yes. ठीक है, चलो। So this is mail questionnaire method. हमने इसके merits and demerits कर लिए बेटे। अब second method questionnaire method में ही आता है, that is enumerator method. अब enumerator method में क्या होता है बेटे, इसमें भी सबसे पहले questionnaire prepare किया जाता है। ठीक है, questionnaire वही form containing set of questions related to the enquiry, लेकिन इस क्वेश्चनायर को बाय पोस्ट इन्फॉर्मेंट तक नहीं भेजा जाता। रादर सम एन्यूमरेटर्स आर अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, अभी तक आपने दो टर्म्स किए हैं, एक होता है इन्वेस्टिगेटर। हु इज इन्वेस्टिगेटर? वन हु कंडक्ट्स द सर्वे, लाइक इन दिस केस CBSE is going to be the investigator, right? सेकेंड टर्म आपने जो करी है दैट इज इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट कौन होते हैं? जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। इन दिस केस 10th स्टूडेंट्स, 10th पास्ड आउट स्टूडेंट्स, राइट, लाइक यू पीपल, यू आर द इन्फॉर्मेंट्स। ठीक है, तो अगर तो आपको बाय मेल आ गया तो ये इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। लेकिन अगर सीबीएसई हम टीचर्स को बोल देती है कि भी आपको हमने ये फॉर्म भेजे, हमें फॉर्म भेज देती है, हम आपसे क्वेश्चंस पूछ के और आंसर्स फिल इन करते हैं, तो इन दैट केस द टीचर्स are the one who are collecting the data on behalf of investigator. They will be called as enumerators. Is it clear? They will be called as enumerators, those who collect the data. So in this case, bete, questionnaires are prepared
and enumerators are appointed. Enumerators are sent to various fields. उनको हर एक को एक एक फील्ड दे दी जाती है. यहाँ पे 100 इंफॉर्मेंट है, यहाँ पे 200 इंफॉर्मेंट है, यहाँ पे 150 इंफॉर्मेंट है, एंड सो ऑन. हर इंफॉर्मेंट हर एन्यूमरेटर अपने एरिया में चला जाता है, वहां पर अपने इंफॉर्मेंट के पास 1 बाय 1 जाता है, उसको क्वेश्चन रीड आउट करके बताता है या पूछता है, और वो जो उसका आंसर देते हैं वो खुद फिल इन करता है. बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? ये बाय मेल भेजा जाता है और इसको खुद इंफॉर्मेंट फिल करता है. ये एन्यूमरेटर लेके जाता है और एन्यूमरेटर इसको खुद फिल इन करता है, इंफॉर्मेंट से फिल इन नहीं करवाता. So in that case, bete, when questionnaire is filled in by the enumerator, it comes to be known as schedule. इस क्वेश्चनायर को हम शेड्यूल कह देते हैं. ठीक है. Theoretically, there is no difference between questionnaire and schedule. Both are forms containing set of questions related to the enquiry, right? So when it is filled in by the enumerator, it is called as schedule. When it is filled in by the informant, it is called as questionnaire. So now the question comes, when is this method more suitable? आप बोलो कि मैम मेल क्वेश्चनायर मेथड कन्वीनियंट है, ये क्या बात हुई? एक तो न्यूमरेटर्स इतने अपॉइंट करने पड़े, उनको भी काम पे लगाया, उनको भी पैसे देंगे, ठीक है, तो बाय पोस्ट ही क्यों नहीं भेज देते? सो बेटे वही बात आ जाती है, कोई मेथड किसी एरिया के लिए सूटेबल होता है, कोई किसी और एरिया के लिए. ये कहाँ पे सूटेबल है? एक, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज. ये भी तब सूटेबल था, ये भी तब सूटेबल है when the field of inquiry is large. Secondly, बेटे हमारी investigation ऐसी है that we require skilled enumerators, specialized enumerators. इतनी vast हमारी इंक्वायरी है, हमें जो डेटा कलेक्ट करना है that is quite complex. हमारा जो पर्पस है इंक्वायरी का वो काफी कॉम्प्लेक्स है और उसके लिए हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है. तो इसके लिए हम मेल क्वेश्चनायर मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते. थर्डली बेटे जब हमें लगे इंफॉर्मेंट इलिटरेट हैं, वो खुद फॉर्म फिल इन नहीं कर सकते. जैसे अगर हमें इंडिया के फार्मर्स से इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, अभी वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट ने फार्मर्स को उनके अकाउंट में पैसे डलवाए हैं. अब हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है, क्या वो सेटिस्फाइड है, वो उनकी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, तो क्या उनके अकाउंट में पैसे चले गए हैं या नहीं चल गए हैं. तो उनको अगर आप बेटे ये क्वेश्चनायर भेज दोगे तो वो तो पढ़े लिखे होते नहीं है ज्यादातर, तो वो कैसे आपका वापस फिल करके भेजेंगे. तो उसके लिए गवर्नमेंट एन्यूमरेटर्स अपॉइंट करेगी, फार्मर्स के पास जो जाएंगे उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे और उनके आंसर्स को फिल इन करेंगे. ठीक है. एंड बेटे अगर आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द एन्यूमरेटर शुड बी वेल वर्स्ड विद द नेचर और लोकल लैंग्वेज, कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेंट. जैसे कि बंगाल में कोई पंजाब के बंदे को भेज दें, ना उसको बंगाली आती है, ना उसको उनके कल्चर के बारे में मालूम है, तो ही माइट बी ऑफेंडेड. तो इसीलिए आपको इन्यूमरेटर्स ऐसे अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि इनकी लोकल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं. ठीक है. मेरिट्स देखो बेटे, वाइड कवरेज, काफी वाइड एरिया कवर हो जाता है इससे. देन एक्यूरेट डाटा आता है क्योंकि एन्यूमरेटर डायरेक्टली इंफॉर्मेंट को ही अप्रोच कर रहा है. देन इम्पार्शियल, बायसनेस नहीं आएगी इसमें. बायस किसकी नहीं आएगी? इंफॉर्मेंट बायस्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता. ठीक है. जैसे कि आपसे अगर आपके प्री बोर्ड के मार्क्स मैं पूछ रही हूँ तो आपको पता है मैम को तो मेरे बारे में मालूम ही है, मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं मैम से 9th 10th में पढ़ा हुआ है. अब मैंने अगर 90% कह दिया तो मैम को पता चल जाएगा मेरे झूठ का. ठीक है. तो यू कांट बी पार्शियल अबाउट इट, यू कांट बी बायस्ड, सो इम्पार्शियल होगा. देन पर्सनल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो आप, तो अगेन दिस इज you can get additional information regarding your data. Then completeness would be there, you can be assured. अगर आपने बाय मेल भेजा है तो हो सकता है 25 क्वेश्चंस में से उसने सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर दिया,
लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप खुद क्वेश्चंस पूछ के आंसर्स लिख रहे हो तो कंप्लीटनेस की क्वालिटी रहेगी। ठीक है, ये इसके मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स देख लेते हैं बेटे। एक्सपेंसिव होगा ऑब्वियसली। यू आर अपॉइंटिंग स्किल्ड एन्यूमरेटर। कहाँ आपने यहाँ पे डायरेक्टली भेज दिए थे बाय मेल, कहाँ पे आप एन्यूमरेटर अपॉइंट करके और उनसे डाटा ऑब्टेन करवा रहे हो। सो इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। अगर लेट्स से आप एन्यूमरेटर को अपने जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली ये मेथड गवर्नमेंट यूज करती है। तो गवर्नमेंट किनको एन्यूमरेटर अपॉइंट करती है, जनरली गवर्नमेंट टीचर्स को। ठीक है, तो अगर बेटे आप उनको कहते हो हम सैलरी दे रहे हैं, हम और नहीं देंगे, लेकिन आपको उनको आने जाने के जो चार्जेस हैं वो तो देने पड़ेंगे ना, तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। देन एन्यूमरेटर्स को ट्रेन करना पड़ता है। अनट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स गलत डाटा आपको कलेक्ट करके देंगे, आपका डाटा एक्यूरेट नहीं रहेगा। सो ट्रेनिंग हैज टू बी इन्कर्ड। then it is time consuming better, obviously it is time consuming. Then it's not suitable for private investigation. क्यों नहीं suitable है private investigation के लिए? क्योंकि it requires large amount of funds. बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है। आपको एन्यूमरेटर अपॉइंट करने, आप खुद सोचो प्राइवेट लेवल पे क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही पॉसिबल होता है। ठीक है, सो ये हमने बेटे कर लिए।